to you. Now, today we will see electron beam welding and laser beam welding. These are nothing but radiant energy processes. So here we are searching now for those here that or non-traditional processes basically it is used, but here instead of this we will go to directly to our regular folder, because in that folder which I just opened, in that non-traditional machining new folder is there. That's why I went there. But here in the old folder only we have this. Yeah, laser beam welding and electron beam welding. This is a big folder. Okay. So first we will see electron beam welding process. Electron beam welding process. This process is characterized hmm, by a very fine weld joint, very fine sealing, we call it very fine sealing welding joint. The welding joints are actually lap joints. Okay, one joint, it is not like bud joint. It is not that one plate is brought close to other, some V preparation is made and then the welding is done, that gap is filled. It is not that type of fusion welding process. It is basically a sealing process, means a beam of electron will pass through the section and will join it or will nail it in front. And means suppose two overlapping joints are there, then the two joints are overlapped, and when it is passed through electron beam, they are sealed, means the entire cross section gets sealed, means that is melted and become one piece. So it is a very fast process, and also very small thickness can also be welded, and the joint is very lesser in the width. So that after effect, that post weld heat treatment etc., that is not required, distortion is less. mm, and very fast process. And it is characterized, only the thing is that you have to make vacuum. Okay, it is done in vacuum, otherwise those that electron beam is of no use, it will be dispersed anywhere. It should be done in vacuum. So what actually is done is, here you can see the main component of electron beam gun, main component of electron beam gun used in welding. So this is shown here in this rectangular piece. It is shown here. You can see here eyepiece also. Now in this setup, this electron beam gun is fitted here. So the same shape you can see here, it is fitted here. High voltage supply is given to the gun, and this is a chamber. This is actually a vacuum chamber, and in vacuum chamber you have their vacuum pump here, so that the air can be taken out and vacuum can be created. Vacuum can be measured in torr. So you can you have that unit torr. Then here is a drive for traversing mechanism. Here is a traversing mechanism. This traversing mechanism, this moves the table in this direction along with the conveyor, and also perpendicular to the paper. Now here in the perpendicular direction, if you see here perpendicular to the paper, you can see, means these are the slide. So this table actually moves linearly like this and also perpendicular to that. And this electron beam gun, that is moving in straight fashion. Now in the straight line it is coming to the workpiece. Now here you have to adjust the work according to the beam gun. ये गन ऐसा आएगा, इलेक्ट्रॉन बीम आएगा, और आपका जो भी मटेरियल सील करना है वो सील हो जाएगा. लेजर बीम के लिए भी यही ऐसी व्यवस्था है, और इलेक्ट्रॉन बीम के लिए भी यही ऐसी अरेंजमेंट है. लेजर बीम में इसकी जरूरत नहीं है, वैक्यूम की जरूरत नहीं. दैट इज एडवांटेज ऑफ लेजर बीम. बट लेजर बीम से भी इलेक्ट्रॉन बीम एकदम थिन जॉइंट देता है, तो इसकी एकदम इंट्रिकेट वेल्डिंग है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का.
और थोड़ा अगर पर मीटर आपने थोड़ा कॉस्ट निकाला तो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का थोड़ा सा कम आता है कंपेयर टू लेजर बीम वेल्डिंग। इसलिए दोनों के कुछ फायदे हैं, दोनों के कुछ लिमिटेशंस है। तो ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर ऐसा आएगा, इलेक्ट्रॉन बीम अगर आ गए तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू एडजस्ट योर वर्क लिनियरली एंड क्रॉस डायरेक्शन सो दैट यू कैन डू द वेल्डिंग। अगर आप बोलेंगे रोटरी अरेंजमेंट, तो यहाँ पे रोटरी टेबल की आपको अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। इन शॉर्ट योर वर्क हैज टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू बीम, क्योंकि बीम स्ट्रेट है आपकी, इलेक्ट्रॉन बीम। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा, बीम स्ट्रेट जा सकता है उसको अगर अरेंजमेंट ऐसा किया तो, but this particular arrangement is showing work adjustment according to the beam. This red color is shown as beam. अभी इलेक्ट्रॉन बीम के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। दिस इज द फिगर दैट आई टोल्ड यू दैट इंग्लिश बुक इन दैट इट वाज गिवन, so I liked that and I taken as it is, but I used color combination. So this will be very easy for you to refer. Filament cathode, you can see cathode rays, this is connected to negative, 3 to 6 volt AC, that and here 15 to 150 kilowatt DC, that is the negative terminal it is connected. This is a cathode, this is a cathode, you can see here cathode, and there is a filament anode. This particular green color which is shown as this one, this is a cathode, negative terminal, it is cathode. And this is a filament anode, which one, this red color. So what happens is electrons are released from cathode and it will reach to anode. Okay, this is as per you the physics, you know more better than me because you are done recently it for GRE and all other things, so you know the physics of this. I am only the engineer now and professor which is application engineer. So that electron released from cathode will be attracted towards एनोड। तो ये फ्लो इधर का इधर ऐसा चालू रहता है। हम क्या करते हैं, इसमें एक पॉजिटिव ऐसा यहाँ पे एक कनेक्शन दे देते हैं इलेक्ट्रॉन बीम में, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको देने के बाद क्या होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज, इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस साइड। और अट्रैक्ट होने के बाद हमारा काम हो गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को मोशन ये डायरेक्शन में देना है और यहाँ पे एक ओपनिंग रहता है हमारा, ये डायरेक्शन से अपने को इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है। तो ये यहाँ से ऐसा इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पे आना चालू हो जाएगा। एंड नाउ फोकसिंग कॉइल, ये फोकसिंग कॉइल में क्या होता है कि ये यहाँ पे सब जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया में जो कम गैप है उसमें आके वहां से नीचे जाने लगते हैं। इट इज स्टॉप्ड हियर एंड जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सब फोकस होना चालू होता है यहाँ पे। सो हियर इट इज 12 वोल्ट DC, so that is also given here. This must be also positive, फोकसिंग कॉइल। तो तभी यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं और फोकस हो रहे हैं एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में। तो रेस्ट्रिक्टेड एरिया से इलेक्ट्रॉन जाने लगे तो अभी उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया और नेचुरली बम्बार्डिंग पावर ज्यादा हो जाएगी, तो वो उसको वेल्ड करेंगे, कटिंग करेंगे। अगर वेल्ड कैसा करेंगे, दो प्लेट को दोनों को ज्वाइन करके, मतलब आपका वो करंट रेंज अगर कम रहेगा तो वेल्ड करेंगे, वो उसका ज्यादा रहेगा करंट का तो उसको दो पीस को तोड़ भी देंगे। तो इन दैट केस इट विल बी नोन एज इलेक्ट्रॉन बीम कटिंग और इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग उसको कहेंगे जब हम लोग कट करेंगे तो। और जब वेल्ड करेंगे यानी दोनों प्लेट जो एक के ऊपर एक ओवरलैप है उसको फ्यूज करेंगे और आगे जाएंगे और कट नहीं करेंगे तो हम उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। प्रोसेस सेम है, खाली इंटेंसिटी ऑफ करंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर ये डिपेंड है कि कटिंग करना या वेल्डिंग करना। ये सेम चीज प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क कटिंग, लेजर बीम कटिंग, लेजर बीम वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम कटिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, इनको सेम है और उसी को नाम मशीनिंग दिया है बाद में। कटिंग जो है वही मशीनिंग है, मतलब बेसिकली कट करेंगे या नहीं मशीनिंग करेंगे तो वो ये तीनों का नाम प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, लेजर बीम मशीनिंग और इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, ये नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस में भी आ जाएगा। मतलब ये तीन प्रोसेस आप यहाँ पे स्टडी कर लोगे तो वो उसमें भी आ जाएगा, मतलब आपको मशीनिंग में भी इसका एडवांटेज मिलेगा, वेल्डिंग में भी मिलेगा। तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन सेम है, ओनली इंटेंसिटी डिफर्स।
ऐसा मैंने लिटरेचर में, गूगल में वगैरह सब जगह डिस्कशन किया बड़े बड़े एक्सपर्ट से इसमें वर्ल्ड में, क्योंकि ये चीज बुक्स में नहीं देते हैं तो आई हैव टू टॉक टू गूगल एक्सपर्ट्स इन द वर्ल्ड। तो कभी कभी उनके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह रहते हैं, कभी कभी मैं भी सवाल पूछता हूँ तो दे गिव द आंसर। तो ऐसे में मेरे को वो बात समझ में आई है कि वो थोड़ा सा उनके वो इंटेंसिटी में ही फर्क है। इवन कभी कभी गन में भी फर्क रहता है, लेकिन वो कंपनी टू कंपनी, इवन वेल्डिंग के गन में भी फर्क रहता है, तो दैट इज नॉट प्रोमिनेंटली एक्चुअली। So this is more important. So what happens is when it is connected to positive, it is all attracted here, and focusing coil is focusing that electron beam gun in the limited area. तो उसका इंटेंसिटी बढ़ जाता है, एंड दिस इज द डिफ्लेक्शन कॉइल। डिफ्लेक्शन कॉइल में क्या होता है, तो बीम थोड़ा सा आपका अभी ये जो पोर्शन है ना, यहाँ पे डिफ्लेक्ट कर सकते हैं हम लोग। मतलब बार बार वर्कपीस को हिलाने से अच्छा है वर्कपीस एक बार थोड़ा सा सेट करे लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन और क्रॉस डायरेक्शन, तो यहाँ के ऊपर का जो वेल्डिंग है वो यहाँ पे डिफ्लेक्शन कॉइल से घुमा के ये जो है अपना इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग गन एक लिमिटेड एरिया में उसको घुमा सकते हैं हम लोग। सो ऑन दैट टेबल, सो दैट इज फॉर डिफ्लेक्शन कॉइल, फोकसिंग कॉइल, डिफ्लेक्शन कॉइल। टू अलाइन बीम विद जॉइंट, मतलब जॉइंट एग्जैक्टली कहाँ है उसको अलाइन करने के लिए फाइन एडजस्टमेंट जरूरी है ना, नहीं तो वो साइड में थोड़ा सा आ जाएगा तो गलत जगह सील हो जाएगा। सो दैट इज द थिंग। और एक 45 डिग्री का एक मिरर भी रहता है ये बीम के साइड में, इससे हम लोग यहाँ जो भी हो रहा है वो 45 डिग्री होने के कारण ये आईपीस में हम देख सकते हैं। तो ये आईपीस में कैसा दिखता है ये मैं अभी तुमको इसमें दिखाऊंगा, मतलब उसका वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जो बीम ये गन की जो कंस्ट्रक्शन है या अंदर की कंस्ट्रक्शन मैंने बताई, ये गन यहाँ पे है, देखो यहाँ पे गन है, ये हाई वोल्टेज सप्लाई यहाँ से दिया है, ये देखो ये 15 से 150 किलो वाट ये डीसी सप्लाई दिया है। फिलामेंट को ये एसी सप्लाई दिया है 3 to 6। ये रेड को रेड मैंने ये दिखाया है, तो ये इसका है, ये इसका है। तो यहाँ ये देखो ये हाई वोल्टेज सप्लाई यहाँ पे दिया है, तो बीम सब तैयार होगा अंदर और यहाँ से बाहर आएगा। ये बाहर आने वाला कहाँ, यहाँ पे बाहर आ रहा है, तो ये यहाँ से बाहर आ रहा है, ये देखो यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। तो ये दो फिगर मैंने उसी बुक में से लिए, तो बच्चों के सामने उसकी फिगर आ जाए इसलिए। तो इलेक्ट्रॉन बीम गन ये हो गया। अभी थोड़ा सा इसका एक आधा वीडियो हम लोग देख लेते हैं। ओके, हाँ तो ये वीडियो देख, एक मिनट। नाउ इट विल बी शोन। देखो बच्चों ये आईपीएस में कैसा दिखाया जाता है, और वो जो एडजस्टमेंट है ना, फाइन एडजस्टमेंट है वो देखो। इसके लिए यहाँ पे स्केल भी है, ये देखो ये इलेक्ट्रॉनिक का स्पॉट, ट्रैक देखो ऐसा जाना है पूरा। ये देखो वो जॉइंट नीचे दिख रहा है, ये देखो ये नीचे जॉइंट दिख रहा है, ये जॉइंट ओवरलैप, और उसके ऊपर से ये अभी ये बीम गन जा रहा है अपना। मतलब एक्चुअली अपना ये स्टेशनरी है, गन स्टेशनरी है, लेकिन ये घूम रहा है आपका सरफेस। मेरे ख्याल से ये एक सर्कुलर पोर्शन है, इसको रोलर से घुमाया जा रहा है और अपना वेल्डिंग हो रहा है। देखो जहां से शुरू किया वहां से वो वेल्ड था। अभी अभी देखो वेल्डिंग की थिकनेस कितनी ज्यादा हो गई, देखो आफ्टर वेल्डिंग। मतलब ये वेल्डेड पोर्शन है, दिस इज अनवेल्डेड पोर्शन। ये पहले वाला रिन था, ये था रन था, उसके ऊपर अभी ये दूसरा रन हो गया और अभी ये सीलिंग हो रहा है पूरा। देखो एक के ऊपर दूसरा सील किया तो आपका वेल्डिंग हो गया। तो दिस इज वन टारगेट ग्रेटिकुल है ये दोनों का जो सेंटर है यहाँ से, ये दिस इज द सेंटर ऑफ योर गन। सो ये एक है रेडियल इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। ये रेडियल नाम कैसे, रेडियंट एनर्जी इलेक्ट्रॉन। तो ये एक अलग यही है, मतलब ब्रांच ही है वेल्डिंग में, रेडियंट एनर्जी वेल्डिंग प्रोसेस। इसमें आता है आपका इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग और लेजर बीम वेल्डिंग। तो इसका मतलब कैटेगरी है वेल्डिंग प्रोसेसेस में, क्लासिफिकेशन रेडियंट एनर्जी वेल्डिंग प्रोसेस। तो ये आपने देखा। अभी आप और एक देखो, मैंने जो काम किए बच्चों को, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग देखो, इधर भी वो रोलर घूम रहा है और ये बीम उसको ट्रैक कर रही है। वो दैट अर्लियर वाज द कंप्लीटेड पोर्शन, और वो लास्ट लास्ट में आ रहा है, अभी वो सीलिंग वाला है। सो दैट यू कैन सी ये क्या दिखा रहे भाई ये। अंदर का वेल्डिंग ये दिखा रहे पूरा। ये सब वैक्यूम में है इसलिए थोड़ा अंदर है, मतलब देखो
एक मिनट, ये लड़के का, ये जो इंजीनियर है वो, एक मिनट, ये रुक क्यों नहीं रहे भाई। हाँ, तो ये देखो, ये पूरा अंदर का पोर्शन है छोटा सा ये बॉक्स में। तो छोटा सा ये रहता है वो बॉक्स, ज्यादा बड़ा नहीं रहता है। कंपोनेंट का साइज भी एक लिमिटेड रहता है। बहुत बड़ा कंपोनेंट है तो लेजर बीम वेल्डिंग पे जाओ बोलते हैं, वो ओपनली कर लो आप। तो ये कुछ लिमिटेशंस इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग कह रहे थे। वैक्यूम चेंबर देख लो 3.1, इसलिए मैंने डाला इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का वैक्यूम चेंबर कैसा दिखता है। यू कैन हैव दैट फीलिंग। हाँ, ये देखो, ये वैक्यूम चेंबर था अपना। कैसा बॉक्स हमने फिगर में निकाला ना, वो बिम था। देखो अभी उसको एडजस्ट किया उसने, बराबर ये लाइन पर जाना चाहिए ना, गलत। ये देखो उसका इलेक्ट्रॉन बीम का वैक्यूम चेंबर। ये देखो, ये वैक्यूम चेंबर इसमें डाले गए। और ये साइड से आईपीस से देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है अंदर। वो 45 डिग्री में मिरर रहता है, तो नीचे जो भी हो रहा है वो ऐसा डिफ्लेक्ट होके अपने तरफ आता है पैरेलल। ये डायल इंडिकेटर उन्होंने सेट करने के लिए डिस्क, क्योंकि ये बराबर सेट करेंगे ना तो और वो तो बीम सीधा नीचे आने वाला है। तो हमारे सेटिंग में गड़बड़ हो गई तो इधर इधर हो जाएगा, इसलिए वो परफेक्ट उन्होंने सेट किया है। ये डायल इंडिकेटर से अपना वो उसका पैरेललिज्म इसका टेबल का चेक कर रहे हैं। टेबल पे जब जॉब लगाते हैं तो जॉब का भी पैरेललिज्म, रन आउट ये चेक करते हैं। ये इसमें ही रेडियल रन आउट अगर होगा तो प्रॉब्लम होगा। रोटरी डिस्क में जो बोल रहा था ना, वो रोटरी टेबल अंदर लेके जा रहे हैं। तो सर्कुलर वेल्डिंग है तो भी अपना यही घूमेगी, रोटरी डिस्क घूमेगी तो जॉब भी घूमेगा और वो बीम ऊपर से सीधा आएगा। तो ये देखो वो हो रहा है। तो ये एक दिखाया उन्होंने। एक दो तीन इलेक्ट्रॉन बीम का और है क्या मेरे पास? एक मिनट, हाँ ये इधर एक है, वो भी देखेंगे हम लोग। क्या सेम है क्या? लगता है सेम है वो। हाँ, वो वही सेम है, दो बार हो गया गलती से। ठीक है, नाउ वी विल गो टू लेजर बीम वेल्डिंग। लेजर बीम वेल्डिंग। हेलो स्टूडेंट्स, जरा फीडबैक दे दो ना, समझा ना तुमको? स्टूडेंट्स, कहाँ गए स्टूडेंट? हेलो। हाँ यस सर। हाँ, यस ओपन सर। करो। कोई कोई लोग भी, हाँ समझ गए। तो आप बच्चों का एक बार फीडबैक है ना, मुझे अच्छा लगता है। चलो फिर अभी नाउ आई विल गो टू लेजर बीम वेल्डिंग प्रोसेस। जैसा बच्चों ने फर्स्ट ईयर के फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा, लेजर, व्हाट इज लेजर? लेजर इज अ लाइट एम्पलीफिकेशन बाय द स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। हाँ, ये गलती से रेडिएशन लिखा है मैंने, गलती से ये टी इधर आया। अभी वो टाइम मेरे को ये नहीं मिला रब करने को, तो वो वैसा ही रह गया। तो ये रेडिएशन है, रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं ना। ये प्रोसेस के नेम है, रेडिएंट एनर्जी वेल्डिंग प्रोसेस। तो ये लाइट एम्पलीफिकेशन बाय द स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। और ये लेजर कैसे रहते हैं, ये तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा ही है, बहुत डिटेल में पढ़ा है। कोहेरेंट लाइट विथ आइडेंटिकल वेव्स इन दे आर इन फेज। तो ये जब एक साथ आ जाएंगे तो इसकी इंटेंसिटी कितनी बढ़ जाएंगे इफ दे आर इन फेज। तो उसके जो अलग अलग सोर्स है लेजर रेज क्रिएट करने के, उसमें ये एक है याग लेजर। एनडी याग लेजर बोलते हैं, एनडी याग लेजर। तो एनडी बोले तो नियोडियम, याग बोले तो यट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट। ये जो मटेरियल है ना, इससे लेजर क्रिएट होता है। और दूसरा एक CO2 लेजर है। मैंने टेल्को में देखा है CO2 लेजर, बहुत बड़ा प्लांट है उनका। और वो जो इंडिका वगैरह उनके नए नए जीप्स वगैरह, बहुत से प्रोडक्ट टेल्को के ऐसे कि अपने बाहर नहीं आते। पूरे कांच के जीप्स वगैरह, पूरे कांच के कार वगैरह ऐसे वो फॉरेन में जाते हैं। यहाँ कौन रखेगा रे, इधर कॉलोनी में रहता नहीं ठीक से, अपना टू व्हीलर ठीक नहीं रहता, इधर ऐसा सेफ्टी कौन करेगा? तो वो सोफिस्टिकेटेड देश में उनके जाते हैं बहुत से प्रोडक्ट टाटा के। हाँ, तो टेल्को का साम्राज्य ऐसा है पूरा पूना में, मैंने देखा है एक बार। IIT थ्रू हम लोग गए थे एक बार विजिट करने इंडिका प्लांट। और उनका ट्रक का जो प्लांट है ना, टाटा और लेलैंड के ट्रक प्रसिद्ध है देखो ना, बड़ी लग्जरीज। तो वो देखने हम गए थे। तो वो जाते जाते उन प्लांट में से हम लोग गुजर गए थे। तो वो टाइम हमने वो देखा है सब। तो ये CO2 लेजर वहां पे है, तो बहुत बड़ा प्लांट। CO2 लेजर इज वेरी फेमस है। प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा रहता है CO2 लेजर का इधर आउटलाइन डायग्राम हमको। तो ये CO2 लेजर में क्या कैसा है देखो, लेजर कैसे क्रिएट होता है कि ये यहाँ पे एक पूरे लेजर ट्यूब रहेगा।
यहाँ पे एक रिफ्लेक्टेड मिरर रहेगा, और यहाँ पे आपका अंदर मटेरियल रहेगा, लेजिंग मटेरियल, या इधर एनडीआर CO2 ये रहेगा। तो अपना लेजर ट्यूब में CO2 लेजर में क्या क्या है मालूम है क्या? लेजर ट्यूब फिल्ड विथ CO2 गैस, हेलियम गैस, नाइट्रोजन गैस, ये तीनों का मिक्सचर रहता है अंदर। और यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, करते हैं लोग, पंपिंग यूनिट एंड हीट एक्सचेंजर्स टू कूल द गैस। मतलब थोड़ा कूलिंग इसका जरूरी है, नहीं तो हीट होते होते वो ट्यूब को ही पूरा मेल्ट कर देगा। सो कूलिंग यूनिट भी रहता है यहाँ पे। एंड मिरर रिफ्लेक्ट्स इंफ्रारेड रेज प्रोड्यूस्ड बाय डिस्चार्ज। तो यहाँ पे जो है ना, एक मिरर रहेगा, ये मिरर रिफ्लेक्टिंग मिरर रहेगा। तो यहाँ पे जो भी चार्ज होता है ना, यहाँ से जो रेज निकलेंगे, ये हमको एक डायरेक्शन में खाली लाने हैं यहाँ पे। तो वो लेजर रेज जो निकलेंगे वो एक्चुअली कोहेरेंट रहेंगे, और दे विल हैव आइडेंटिकल वेव्स, ओके। और मोनोक्रोमेटिक, एक कलर के रहेंगे, और ये कोहेरेंट रहेंगे, यानी दे आर इन फेज रहेंगे। तो ये सब रेज यहाँ पे निकलते हैं, यहाँ यह डायरेक्शन में जाने वाले को जाने दो, ये तो यहाँ जा ही रहा है। और एक रिफ्लेक्टेड मिरर रहता है यहाँ पे 45 डिग्री का, तो ये लेजर रे यहाँ जाके ऐसा यहाँ से वर्टिकली यहाँ पे ये होते हैं, मतलब नीचे शिफ्ट होते हैं वर्टिकल। और वो अरेंजमेंट हमने इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में देखा ही है कि नीचे से कैसा वो प्लेटफॉर्म जाएगा, तो उसको हम एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू लेजर डायमेंशन। तो लेजर बीम गन कभी कभी होता है, कुछ कुछ जगह अरेंजमेंट रहता है, और कोई कोई जगह में ट्रावर्सिंग अरेंजमेंट है। मतलब ऐसा एक बड़ा प्लेटफॉर्म, एक बड़ा कन्वेयर रहता है, उस पे कार वगैरह आते रहते हैं, कार बॉडीज, और ये उसका वेल्डिंग इसका चालू रहता है। उसने बटन दबाया, ऑपरेटर ने के लेजर आके उसको ऑपरेट करके जाएगा, वो जीप आगे चला जाएगा, अगली जीप आने तक हम इंतजार करेंगे। वो कन्वेयर कंटिन्यूअसली चालू रहता है। आप लोग देखो ना, राइट फ्रॉम स्टार्ट इतना एक एक आधा आधा किलोमीटर का कन्वेयर है टेल्को में। अगर आपने कभी जाके विजिट करो, किसी की पहचान है तो जाओ टेल्को वगैरह, महिंद्रा छोटे पैमाने पे अपना यहाँ का, हाँ, मारुति वगैरह, ये बड़े प्लांट जो है ना, ऑटोमेशन। अगर वहाँ कहीं नहीं मिले तो आप लोग फिर यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे बहुत से दिखाए, फॉरेन के भी दिखाए, वो बहुत सोफिस्टिकेटेड है वो। हमारे भी काफी अच्छे हैं हमारे ऑटोमोबाइल प्लांट। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग गुड कार्स इन इवन इन इंडिया नाउअडेज। तो एक जमाने में खाली प्रीमियर पद्मिनी, दैट फिएट, और दूसरे थे एक एम्बेसडर, जो सब नेता लोग यूज करते थे, वो दो ही था, यानी वो बहुत प्रेस्टीज माना जाता था। आज हर 6 महीने में दो चार ब्रांड नए आते हैं, तो पीपल हैव गुड चॉइस इन योर जनरेशन। So that is basically it is a revolution in this automobile field and automation, automatic robots. So laser beam makes that plays very vital role in that, spot welding and laser welding. So ये laser tube ये जो है, यहाँ पे इस लेजर ट्यूब को हम लोग ये करते हैं, वो हाई वोल्टेज दे देते हैं फ्लोरोसेंट डिस्चार्ज के लिए। यहाँ पे अंदर वायर डाल के इसको फ्लोरोसेंट डिस्चार्ज हम देते हैं, हाई वोल्टेज देने के बाद ये जो मिक्सचर है CO2 हेलियम नाइट्रोजन, ये रिलीज करेगा आपका इंफ्रारेड लेजर्स। रेड कलर का रहता है, इसलिए मैंने वो रेड दिखाया। और तो ये डायरेक्शन में आने वाला भी यही उसको रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्टर है इसलिए। और ये डायरेक्शन में जा रहा है, वो तो जा रहा है, तो सभी ये लेजर यहाँ से ओपनिंग है इसको, मिरर विथ विंडो टू अलाउ कोहेरेंट इंफ्रारेड रेडिएशन टू एस्केप। तो यहाँ से उसको एस्केप करने के लिए स्पेस है, यहाँ से ऐसा आएगा और 45 डिग्री से ऐसा नीचे जाएगा। यहाँ पे उसको एक लेंस है, ये लेंस में वो आते हैं सब रेज, और यहाँ से ऐसा कॉन्वर्ज हो जाते हैं। कॉन्वर्ज हो जाने से उसकी शक्ति इतनी बढ़ती है, गलती से किसी का हाथ भी जाएगा तो कट ही जाएगा। वो मेटल को कट करने वाले ताकत है वो, इंटेंसिटी। लेजर गन्स वगैरह अपने स्टार वार में वगैरह देखे होंगे, तो वो ये हैविंग द सेम प्रिंसिपल। और जब इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है तो इसकी इंटेंसिटी और बढ़ जाती है। तो और साइड में उधर एक शील्डिंग गैस का भी अरेंजमेंट रहता है। मतलब इसकी एक गन है ना इधर छोटी सी, जहाँ से एक्चुअल वेल्डिंग के पास जो एक गन रहेगा, जो पोर्शन रहेगा, वहां से शील्डिंग गैस का भी अरेंजमेंट रहता है। सो विद दैट योर वर्क कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कॉन्टेमिनेशन,
क्योंकि वो ये शील्डिंग गैस का उधर जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में क्यों जरूरत नहीं, क्योंकि वो वैक्यूम में है, उधर कोई गैस आने वाला नहीं आपको डिस्टर्ब करने के लिए। लेकिन ये ओपन में है तो इसको आपको ऑक्सीडेशन और वो हाइड्रोजन पोरोसिटी का वगैरह प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए हम इसको शील्डिंग गैस से प्रोटेक्ट करते हैं। सो बाकी सब सीलिंग वगैरह इतना मस्त है ना, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग और लेजर बीम वेल्डिंग में थोड़ा भी विड्थ ज्यादा नहीं होता, ओवरलैप टाइप जॉइंट रहेगा, और इसको खाली ऐसा सील करेंगे तो सब पूरे क्रॉस सेक्शन जुड़ जाएगा। तो ये लेजर बीम वेल्डिंग का थोड़ा सा, एक मेरे पास और एक स्लाइड है, तो इसका एप्लीकेशन कैसा रहता है मैं बताता हूँ। तो ये जो पोर्शन है ना, ये अंदर का, ये गन और उसका एक छोटा सा ये पोर्शन रहता है ना, ये लेजर बीम वेल्डिंग का, ये कैसा दिखता है मैं आपको जरा दिखाता हूँ। ये मेरे पास और एक ये है स्लाइड। हाँ, एक बार, हाँ ये देखो, ये लेजर बीम प्लांट है। तो ये देखो, ये लेजर बीम वेल्ड कैसा रहता है, ऐसा है। मतलब वो ऊपर से आया ना वो फोकस, तो वो फोकस आने के बाद वो जो बीम है ना, हाँ, वो छोटी सी उधर जो वेल्डिंग गन है ना, उस गन में फिर से इधर एक रिफ्लेक्टर रहता है सारे, हाँ, पैराबोलिक या मिरर। ये मिरर से यहाँ से आप यहाँ पे आएगा, और यहाँ से वो सेफ्टी कोन बोलते हैं, मतलब यहाँ से वो पूरा यहाँ से बाहर आएगा बीम स्पॉट। तो ये बीम स्पॉट इतना कम है, देखो डायमीटर देखो, 0.25 इंचेस, इंचेस में दिया है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें हम लोग, 1 इंच बोले तो 25 mm ना, तो इसको अगर 25 mm से आप मल्टीप्लाई करो तो वो आ जाएगा कितना है वो, मतलब 0.6 mm वगैरह, वो आप मल्टीप्लाई करके देखो इसको, 25 से मल्टीप्लाई करके कितना आता है। तो इतना छोटा सा आएगा पॉइंट, मतलब लेजर बीम गन एकदम ऐसा हेयर लाइक दिखेगा इतना, लेकिन उसमें पावर बहुत रहता है। तो स्मॉल स्मॉल इंट्रिकेट पार्ट्स वो भी वेल्ड हो सकते हैं। प्लस आपने इंटेंसिटी बढ़ाई तो लार्ज पार्ट्स दैट कैन आल्सो बी डन। ये देखो यहाँ पे कंट्रोल पैनल रहता है, एक्स वाई जेड मोशन हम इसको दे सकते हैं। ये कन्वेयर जा रहा है, पूरा आधा किलोमीटर का पट्टा है, एक के बाद एक आ रहा है, चासीस आ रहा है, देखो ये आया, फिर ये दूसरा आया, फिर ये तीसरा आया, चौथा। ये ऐसा गणपति का लाइन रहता है ना, ऐसा पूरा लाइन रहता है वेटिंग, एक गणपति गया, दूसरा आया, तीसरा आया, ऐसा लाइन रहता है। और हमारा ये पोर्शन है ना रेड कलर का, ये देखो ये सेम शेप है यहाँ पे, ये जो है ना, ये सेम अरेंजमेंट यहाँ पे रहती है। एंड कंट्रोल, ये कंट्रोल करने का जो पैनल है ना, वो भी ये साइड में है, या फिर ये साइड में रहेगा। मतलब लेजर का इंटेंसिटी कैसा कंट्रोल करना है, क्या करना है, कब बंद करना है, यहाँ बैठ के एक चेयर पे बैठ के आदमी कंट्रोल करेगा इसको, ऑपरेटर, क्योंकि लेजर को नजदीक नहीं जा सकते क्योंकि उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। तो ये अरेंजमेंट है। और लेजर बीम देखो कैसा ऊपर नीचे आता है। ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन, ये इसके अंदर ऊपर नीचे ऐसा आ जाता है। तो ये उसको, ये देखो जेड मोशन उन्होंने बोला है, देखो जेड मोशन, जेड प्लस नीचे, जेड माइनस ऊपर, वाई प्लस वाई माइनस, ये देखो वाई प्लस वाई माइनस, मतलब ये तुम्हारी ये गन घूम रही है अभी इधर, तुमको वो इलेक्ट्रॉन बीम जैसा पाबंदी नहीं है। मतलब यू डोंट हैव दैट लिमिटेशन ऑफ दैट यूर व्हाट वी कॉल वैक्यूम बॉक्स। ये तो ओपन एयर में है ना, तो आप यहाँ वहाँ कहीं भी जा सकते हो। तो बड़े जॉब्स देखो, ये चासी वगैरह जो बड़े जॉब है ना, वो भी काम आ जाते हैं, ट्रक की चासी है ये। तो ये आगे पीछे प्लस माइनस वाई डायरेक्शन में ये जाएंगे, जेड ऊपर नीचे जाएंगे। और अभी कौन सा रहा, एक्स, एक्स डायरेक्शन बीम को नहीं दी जाएगी। एक्स डायरेक्शन कौन दे रहा है, एक डायरेक्शन कन्वेयर दे रहा है, जहां पे जॉब खुद लिनियरली घूम रहा है। सो एक्स प्लस एक्स माइनस प्लस माइनस, y plus y minus sidewise, and z plus z minus up and down. So these all things can be done here. ऊपर से बराबर है क्या, देख देखिए स्टेयर केस है, मतलब ये प्लांट कितना बड़ा होता है। देखो ये प्लांट मैंने टेल्को में हम लोगों ने देखा है, जब मैं आईआईटी में टेक कर रहा था, आईआईटी मुंबई में, तो हमारी एक ट्रिप गई थी, वो टाइम मुझे देखने को मिला टेल्को में CO2 वेल्डिंग। ऐसा अलग अलग, खुद आईआईटी में एक एग्जाइमर लेजर बोल के, एक एग्जाइमर लेजर का भी हमारा अलग अलग लेजर है यार, एनडीआग लेजर, एग्जाइमर लेजर, CO2 लेजर, अलग अलग लेजर है, जो मुझे भी अभी 10-12 अलग अलग सोर्सेस है। तो आईआईटी में जो खरीदा है उनके लैब में वो एग्जाइमर लेजर है। आप लोगों को ज्यादा मालूम रहेगा, आप लोगों ने फिजिक्स में ये इसके सोर्सेस वगैरह सब ये किए होंगे आपने। रूबी रूबी लेजर भी है, रूबी क्रिस्टल, रूबी से भी बनाते हैं। तो ऐसा अलग अलग मटेरियल है, उससे बनाते हैं ये सब। तो ये आपका सेटिंग को दिखाया। अभी लेजर का एक आधा वीडियो है तो मेरे पास, देखता हूँ मैं, ये कितना है लेजर वेल्डिंग, थोड़ा सा देख लो आप।
नहीं, ये तो ये है स्लाइड है, एक मिनट। लेजर वेल्डिंग इधर दिख रहा है। हाँ, ये है, ये देखो एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ इसका, लेजर का। हाँ, ये देखो, ये लेजर वेल्डिंग में अलग अलग डेवलपमेंट देखो रे, कोई भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो वो ये भी एडजस्ट कर रहा है, टूल भी एडजस्ट कर रहा है लेजर, और जॉब भी एडजस्ट कर रहा है। यू कैन सी व्हाट सब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के हिसाब से इसका कंट्रोलर ऑटो कंट्रोल है पूरा। या ऐसा लग रहा है एक आधा पंछी ऐसा दाना खा रहा है, ऐसा लग रहा है, मतलब इट इज लाइक see side wise movement here you can see that joints of, so that is robotic laser actually। ये कोई इलेक्ट्रोड वगैरह नहीं है, वो जो बीम आती है उससे ही मेल्टिंग, और ये कितना फास्ट होता है देखो। तो ये ऐसा कुछ फिक्शन मूवीज ऐसा लगता है, लेकिन वो है नहीं, इट्स अ ट्रुथ। हाँ, it is a truth, all degrees of freedoms are taken care by both workpiece as well as by laser beam gun, so it is worth to watch, it is worth to watch। Okay, हाँ, तो ये एक है। So you can see here you can see that robotic arms and its hinges and those joints, so it's very worth to watch। See, हाथ नहीं डाल सकते ना इसमें, मैन्युअल इंटरवेंशन अलाउड नहीं है। सो व्हाट एवर सेटिंग यू हैव टू डन, इट इज शुड बी डन एट द स्टार्ट। अगर इसमें गलती हो गई तो वो कंपोनेंट रिजेक्ट हो गया, क्योंकि उसने तो वो एज इफ इट इज करेक्ट है ये देख के उसने पूरा काम किया है। अगर कुछ हजार्ड वगैरह होता है तो फिर उसके लिए ऑपरेटर को उधर हमेशा होना जरूरी है। कभी इंटेंसिटी ज्यादा हो गई, लीक हो गई, या क्लैंप टूट गया, तो वो टाइम उसको स्टॉप करना पड़ेगा। So see complicated seam, you can see here it is welded here, एकदम टिक वेल्डिंग जैसी लगती है क्या नहीं, एकदम मस्त है देखो। हाँ, ये कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, ये कैसा हाथ से करने को कितना तकलीफ होगा, है देखो, ये पूरा अलग अलग डायरेक्शन में। सो इट इज वन ऑफ द वीडियो ऑफ लेजर वेल्डिंग, एडवांस लेजर वेल्डिंग। ये अवेलेबल था अपने नेट पे। अभी मैं और कुछ दिखाता हूँ आपको, ट्यूब्स और प्रोफाइल्स का भी। ये सेम है क्या? नहीं नहीं, हाँ, ये अलग है। हाँ, ये इज वर्थ वाचिंग। लेजर बीम कभी वेल्डिंग, अभी अभी देखा वो लेजर बीम वेल्डिंग का आपने देखा। अगर कट कट करना है ज्यादा इंटेंसिटी से, तो ये देखो, ये लेजर बीम कटिंग और लेजर बीम मशीनिंग। यू कैन सी दिस। some motions are given to workpiece, and some motions are given to even that laser arm, that is robotic arm, and you see that cutting has been done. This is laser cutting or laser machining, so whenever laser machining is there, so that intensity of laser is high now. hmm? Intensity of laser is high, and see how readily they are doing, लग रहा है जादू है ऐसा लगता है भाई, लेकिन इट इज ऑल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। बोथ वर्क पीस एंड द टूल हेड्स आर मूविंग, एंड इसका प्रोग्रामिंग वगैरह करना यानी रियल ब्रेन का काम है बच्चों। हम टीचर लोग तो उसके एप्लीकेशन पढ़ाते हैं, उसका जॉइंट डिजाइन वगैरह करके देते हैं, बाद में वो कैसा करना वो मशीन मैन्युफैक्चरर और उसका प्रोग्रामिंग कोडिंग करने वाले लोगों का असली ब्रेन है इसमें। एंड अकॉर्डिंगली देन our how that instruction are giving to machine interface, ये रियल इंजीनियरिंग है आज का दिन। आज का इंजीनियरिंग इजी नहीं है, पहले जैसा टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस और ये सब पढ़ के चुप रहने वाला इंजीनियरिंग नहीं है। इंजीनियरिंग हैज गॉन टू हायर स्टेज, ये सामने हम लोग उसको देख रहे हैं। कुछ साल पहले अगर देखते तो हमको ये जादू लगता था या फिक्शन लगता था। ये फिक्शन में भी कौन इमेजिन करेगा इतना सब। सी द रेट एट विच दैट ऑपरेशन इज डन। ये अगर मैन्युअली करते बैठे ये सब प्रोडक्शन, तो 2 महीना जाएगा एक प्रोडक्ट को, और वो भी इतना एक्यूरेसी नहीं होगा। बट सी द एप्लीकेशन, and because of such joints ना, carving your design is becoming easier। डिजाइनर पहले डिजाइनर को लिमिट आता था कि जैसे जो जो चीज वर्कशॉप में हो सकती है उसके हिसाब से उसको डिजाइन करना पड़ता था। आज एनीथिंग इज पॉसिबल, यू कैन सी फ्रॉम योर आईज नाउ। व्हाट अ ब्रिलियंट, सी हो गया प्रोडक्ट, कट हो गया, दूसरा पेज शुरू हो गया उसका काम। देखो, स्लॉट मारना, होल मारना, अलग अलग प्रोफाइल कट करना। सी द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोसेस, लेजर पे बिल्डिंग। दंग रह जाते हैं लोग। सो इट्स
तो मैंने तो एक छोटा सा वो एप्लीकेशन देखा है ऑटोमोबाइल का, स्ट्रेट लाइन का, ये देखो कहाँ तक पहुंची है दुनिया अभी। ऑफ कोर्स दीज वीडियोज आर अवेलेबल ऑन योर यूट्यूब। मैं कहीं से जादू से नहीं लेके आता है, तुम लोग भी देख सकते हो, लेकिन तुमको बताना मेरा काम है कि ये सब चीज हम लोग भी सीख रहे हैं। एंड देयर इज नो लिमिट टू दिस स्टडी बाबा, हम लोग तो बेसिक सीखते हैं, यू कैन सी द एडवांसमेंट्स। तो ये रहा आपका लेजर बीम वेल्डिंग। जस्ट अ मिनट, कहाँ गया भाई बच्चों वो? हाँ ये आया क्या यहाँ पे, लेजर बीम। तो आज हमने न, अभी थोड़ा सा हम लोग एक बार सिलेबस देखेंगे हमारा, कमिंग बैक टू वो जादुई वर्ल्ड से हम लोग हमारे वर्ल्ड में आ जाएंगे, क्योंकि हमको एग्जाम वगैरह देना है। तो हमारा P1 का सिलेबस देखता हूँ मैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कंप्लीटेड फ्रॉम द वेल्डिंग सेक्शन, यू कैन सी हियर। वेल्डिंग प्रोसेसेस, गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, मैनुअल मेटल, MMAW, GTAW और टिग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग हमने देखा, SAW देखा, सबमेर्ज आर्क वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग हमने देखा वो लास्ट टाइम, प्लाज्मा। देन इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, तो वर्टिकल प्रोसेस नहीं क्या, वो वर्टिकली आता है, वो बॉक्स पूरा भर के जाते हैं, थिक थिक प्लेट के लिए यूज होता है इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, दैट वी सॉ। टुडे वी सॉ लेजर बीम वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। वन स्पेशल सेशन वाज देयर, ये वीडियो मैंने एफबी पे लोड किया, लोगों को इतना अच्छा लगा, थर्मेट वेल्डिंग। वो बोलते हैं अरे हम भी जान गए, इंजीनियरिंग आने की क्या जरूरत है, तुम्हारा लेक्चर भेज दो। लोग मजाक कर रहे थे फ्रेंड, ठीक है, एक नमूना लोगों के लिए दे दिया। थर्मेट वेल्डिंग और फ्रिक्शन वेल्डिंग एक सेशन में आपको पढ़ाया था। रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस पिछले सेशन में हमने पूरा किया था, इसी के साथ हमने वेल्डिंग पूरा किया। अगले लेक्चर में थोड़ा सा हम लोग वेल्डिंग डिफेक्ट्स और वेल्ड पोजीशन देखेंगे। मैंने रिक्वेस्ट किया है, मैंने और अपना जो साथी टीचर है बी डिवीजन के, उनका नाम है संदीप संदीप लंगड़े सर, वो भी इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, रिसेंटली PhD कर रहे हैं अपने सर के अंडर, तो वो बी डिवीजन को पढ़ा रहे। मैं तो इसमें मतलब मेरा पूरा लाइफ गया इसमें। तो मैंने रिक्वेस्ट की कि ये हीट अफेक्टेड जोन, हम बताएंगे बच्चों को, वेल्डेबिलिटी स्टडी जरा ज्यादा है डिटेल, तो वो थोड़ा बच्चों को ऑप्शन दे दे, ऐसा मैंने रिक्वेस्ट किया है अभी बच्चों को, मतलब इनको कॉलेज ने मांगा था कि ये कोरोना टाइम में थोड़ा सा पर ये बच्चों को थोड़ा रिलैक्स देना चाहेंगे क्या, तो कुछ सिलेबस में हमने ये डाला है कि वेल्डेबिलिटी स्टडी वगैरह थोड़ा है डिटेल, वो भी ओपी करना में दिया है सब, लेकिन वो उससे थोड़ा बच्चों को हम ये करो बोले, रिलीज बाद में पढ़ेंगे ना बच्चे, सब कुछ क्या आज ही पढ़ेंगे क्या। हीट अफेक्टेड जोन थोड़ा सा बच्चों को बताता हूँ, हीट अफेक्टेड जोन, वेल्ड जोन एंड बेस मेटल, उसमें थोड़ा सा इसमें फर्क रहता है ग्रेन स्ट्रक्चर में, ड्यू टू सडन हीटिंग हीट अफेक्टेड जोन का जो ग्रेन स्ट्रक्चर है वो बदलता रहता है बेस मेटल से। तो ये थोड़ा बाकी इतना की जरूरत नहीं, तो उसका आंसर अभी आया नहीं है, क्योंकि वो हम उनका मीटिंग भरेगा बाद में, लिखा पढ़ी हो जाएगा, उनका कुछ परमिशंस वगैरह ये सब फॉर्मेलिटी होने के बाद हमको मालूम पड़ेगा, तब हम अगर बोले पढ़े तो आपको उसके नोट्स भी दे देंगे हम लोग वेल्डेबिलिटी के लिए। वेल्ड डिफेक्ट्स एंड वेल्ड पोजीशन अगले लेक्चर में हम लोग ले लेंगे। इसके बाद हम जो चालू करने वाले हैं वो है नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग। मैंने अभी वो डी ड्राइव खोला था ना, उसमें मैंने उसमें कई नए एडवांसमेंट मैंने उसमें अटैच किए, तो एक एक प्रोसेस हम देखेंगे। उसमें से मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको, ये देखो, लेजर बीम मशीनिंग, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग एंड प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, ये ऑलरेडी हमारा हो चुका है, जो वेल्डिंग के साथ हुआ, मतलब खाली इंटेंसिटी में फर्क है। तो ये तीन इसलिए मैंने डिटेल में ले लिए स्पेशल स्पेशल सेशन में, कि आपको ये वो दोनों का प्रोसीजर और दोनों का क्रॉस सेक्शन, दोनों का गन साइज, दोनों का सब सेम है, खाली इंटेंसिटी का फर्क रहता है। इंटेंसिटी ज्यादा तो मशीनिंग और कटिंग कहते हैं, इंटेंसिटी रिलेटिवली कम है तो वेल्डिंग कहेंगे। मतलब बीम की इंटेंसिटी, एंड बीम इंटेंसिटी इज डिसाइडेड बाय बीम करंट। ओके, लेजर बीम और इलेक्ट्रॉन बीम में वी कैन यूज द वर्ड रेज कॉन्सेंट्रेशंस। इलेक्ट्रॉन बीम रेज कॉन्सेंट्रेशंस, concentration increases, naturally heat will be increased. Concentration is controlled, you can convert that cutting to welding. ये हम नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग हम बाद में चालू करेंगे, तो ये हमारा प्लान है। नाउ हम लोग वी विल स्टॉप हियर टुडेज लेक्चर, बिकॉज नया टॉपिक अभी चालू नहीं कर सकते आज। नया टॉपिक चालू करने से आप लोग जितना मिला है मटेरियल उससे स्टडी करो। आई आई होप वेल्डिंग का आपको दिया है ना मैंने, इसका PDF बना के, मेरे वेल्डिंग इसके PDF का
आपका पीपीटी का पीडीएफ बना के शायद दिया है आपको लॉन्ग बैक, मैं चेक करूंगा, अगर नहीं दिया है तो बाद में भी भेज सकता हूँ. सो आई एम स्टॉपिंग माय रिकॉर्डिंग टुडे. I have stopped the recording.